Hello student, myself VR Kodkumbe welcomes you in this video lecture. Students, we have started the chapter adsorption and colloids, and in that we have seen the absorption, adsorption, sorption, all these terms we have seen. Now today we are going to see types of adsorption. We are going to see the types of adsorption, that is depending on the nature of forces involved in the process of adsorption. There are two different types of adsorption. It is the first is the physical adsorption, and another one is the chemical adsorption or chemisorption. Okay, suppose there is a piece of or there is a surface, or there is a blackboard, or there is a whiteboard, whatever it may be. Suppose on the or there is a surface, any surface, and on that surface suppose there is the dust particles get adsorbed on this surface. Again the next layer will be get adsorbed in on this surface. Again the another layer will be get adsorbed on that layer. That is the there is a multi-molecular layers are formed. Okay, multi-molecular layers are formed here, because from on one layer again the another layer will be get adsorbed, again another layer will be get adsorbed. Then why it is called as the physical adsorption? Because in the physical adsorption there there is a weak attraction between the adsorbent and the adsorbate. Okay, it is due to the weak van der Waal forces, and this adsorption takes place due to the weak van der Waal forces, and there is a weak attraction between the adsorbent and the adsorbate. Therefore this is a physical adsorption phenomenon, and since there are different layers are formed, it is called as the multi-molecular. It is called as these layers are called as the multi-molecular layers. Okay, now this physical adsorption is the exothermic in nature, that is the heat is evolved, and also it is non-specific in nature, because nothing is required to take the physical adsorption. Therefore it is a non-specific phenomenon. It doesn't require any particular temperature, or it doesn't require any special catalyst or something to happen. It doesn't require anything. Therefore it is non-specific in nature, and it takes place at any instant, at any time, at anywhere it will take place. Okay, since this is a, and also it is a reversible phenomenon, because it can be removed and it can be again applied. It can be removed and again applied. If suppose if we write down on the your whiteboard and or the blackboard, you can remove and again you can write there. Again you can remove the thing, and again you can write there. Thus this is a this is a reversible phenomenon. This is a reversible phenomenon. It can be removed and applied again and again, and also it favors at low temperature. Why it is favors at low temperature? Because this is exothermic in nature. This phenomenon is exothermic in nature, and therefore it is more favorable at the low temperature. Okay, all these things about the physical adsorption. Now we will go towards the chemical adsorption or the chemisorption. Okay, now if we consider about the metal, suppose this is a metal, and gas can be the gas is adsorbed on this metal. Okay, the gas is adsorbed on this metal, and there will be a chemical reaction. There will be a chemical reaction of the gas and the metal. तो गैस और मेटल के बीच में वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, राइट. तो नाउ
जो ये जो केमिकल केमिसॉर्प्शन जो है, तो यहाँ पे जो बनता है लेयर, गैस का लेयर जो बनता है यहाँ पे इसके ऊपर, तो ये इसके ऊपर जब बनता है तो ये सिंगल ही लेयर बनता है, देयरफॉर इट इज़ ए मोनोमोलिकुलर लेयर, इट फॉर्म्स अ मोनोमोलिकुलर लेयर, इट फॉर्म्स ऑफ मोनोमोलिकुलर लेयर, बिकॉज उसके आगे हम फिर से भी गैस डालेंगे तो ये गैस वो गैस के ऊपर एब्जॉर्ब हो सकता है, बट इट नॉट बी विल गेट एब्जॉर्ब on this metal surface, or it will not form bond in between the metal and the gas. तो what is the chemical adsorption? तो chemical adsorption में क्या होता है, there is a strong interaction, there is a strong interaction between the adsorbent and the adsorbate. तो इसमें since the chemical bond is formed there, therefore there will be a strong attraction between the adsorbent and the adsorbate, therefore it is a chemisorption or the chemical adsorption. Now this chemisorption always favors at high temperature. We have seen that the physical adsorption favors at the low temperature. Here the chemisorption favors at high temperature, and again this is specific in nature. ये कहाँ पे भी नहीं होगा, स्पेसिफिक इसमें ही हो जाएगा, ये कुछ स्पेसिफिक मेटल्स रहेंगे उसके ऊपर ही ये गैस एड्जॉर्ब हो जाएगा, या फिर कोई भी दूसरा गैस कुछ टिपिकल मेटल पे ही एड्जॉर्ब हो जाएगा, इसीलिए दिस इज स्पेसिफिक इन नेचर. फॉर एग्जांपल हम देख लेंगे, सपोज ऑक्सीजन ऑन कार्बन, तो ऑक्सीजन ऑन कार्बन रहा तो इसमें कैसा हो जाएगा, इट फॉर्म बॉन्ड विद द कार्बन. तो जो ऑक्सीजन है कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, दैट इज O2 प्लस ट्वाइस कार्बन गिव्स यू ट्वाइस CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ओनली फर्स्ट लेयर फॉर्म्स बॉन्डिंग विद द एडसॉर्बेंट. तो एक ही लेयर बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, यानी कि एक ही लेयर ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, दूसरा लेयर नहीं फॉर्म करेगा कार्बन के साथ बॉन्डिंग. देयरफॉर दिस इज ए मोनोमोलिकुलर लेयर. ओके, thus these are the different two types of adsorption, physical adsorption and the chemisorption or the physisorption or the chemisorption. Now regarding these points, or taking mind in this all these points, you can easily write down the distinguishing points, or you can write down the distinguishing characters of the chemisorption and the physisorption. Okay, now we are going to see the factors affecting adsorption of gases. You know that the adsorption is a surface phenomenon, right? तो इसमें हम अभी डिफरेंट फैक्टर्स देखेंगे, विच कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एडसॉर्प्शन पे. तो इसमें आता है नेचर ऑफ एडसॉर्बेट, जो गैस है कौन से भी सरफेस पे एडसॉर्ब हो जाएगा, नेचर ऑफ एडसॉर्बेट. तो नेचर ऑफ एडसॉर्बेट देखने के पहले वी विल सी क्रिटिकल टेम्परेचर. व्हाट इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर? तो सपोज कौन सा भी जो गैस है उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में वो लिक्विफाई हो जाता है, दैट इज गेट कन्वर्टेड टू द लिक्विड. तो व्हाट इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर? वो गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच liquefaction of gas takes place is called as the critical temperature of that particular gas. तो अलग अलग गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर्स जो रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, डिफरेंट गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर से डिफरेंट रहते हैं. तो नेचर ऑफ एडसॉर्बेट यानी कि गैस का नेचर कैसा है उसके ऊपर भी एडसॉर्प्शन अफेक्ट करता है. तो एडसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, दैट इज गैसेस हैविंग हाई क्रिटिकल टेम्परेचर गेट एडसॉर्ब इजीली. जो गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा रहता है
दैट विल बी गेट एब्जॉर्ब इजीली। तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम ए चार्ट में जो नाइट्रोजन है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर तो 126 है, तो वो थोड़ा कम एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। तो अभी नेक्स्ट वन हम देखेंगे HCl, तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 324 है, तो थोड़ा ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है 430 है, वो सबसे ज़्यादा है इस चार्ट में, तो ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। मीन्स जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा वो गैस इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सिंपल थिंग यहाँ पे कौन सा गैस सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, बोलो कौन सा गैस एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा, राइट, द SO2 गैस विल बी एब्जॉर्ब मोर बिकॉज उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, हाइयर है, इस सब में उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। द नेक्स्ट इज़ द नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट। तो नेचर ऑफ हमें पता है कि एडसॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमिनन। तो लार्ज सरफेस एरिया रहेगा तो मोर एडसॉर्प्शन रहेगा ऑफ कोर्स, और मोर क्लीन सरफेस एरिया रहेगा तो मोर एडसॉर्प्शन होगा, या फिर पोरस सरफेस एरिया रहा तो भी उसका एडसॉर्प्शन वहाँ पे हमें ज़्यादा दिखेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। तो एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया कैसा है, जो एडसॉर्बेंट है हमारा उसका सरफेस एरिया कैसा है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज़ हमने यहाँ पे कोई भी एक चारकोल का पीस लिया है, ओके, चारकोल पीस हमने यहाँ पे ले लिया है, चारकोल पीस अभी यहाँ पे हमने ले लिया, तो एक पीस है, ओके। तो इसके ऊपर जो गैस, इसके ऊपर कुछ गैस एब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे ये गैस एब्जॉर्ब हो गया है, तो इसका जितना सरफेस एरिया है उतना गैस एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाद में हम देखेंगे कि ये जो चारकोल है उसका हम फाइन पाउडर करेंगे, ओके। तो फाइन पाउडर करने के बाद क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट वेरी फाइनली डिवाइडेड एंड देयरफॉर उसका वॉल्यूम बहुत, यानी कि सरफेस एरिया उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उतने ही चारकोल के पीस का, तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स मोर gas will be get absorbed, that is the finely divided, we can say that the finely divided substances, on that substances more absorption will takes place. So rough surface रहा, colloidal surface रहा, तो these are the good adsorbent. That is, we can say, because more surface area is available and therefore the more adsorption will takes place. The next factor is the temperature. So we have seen that this adsorption is a exothermic phenomenon and therefore it will takes place at lower temperature, or it will favor, sorry, not takes place, the favors at lower temperature. That is, we can say that the adsorption is inversely proportional to the temperature. The adsorption is inversely proportional to the temperature. That is, as the temperature at lower temperature more adsorption will takes place, and at the higher temperature lower adsorption will takes place. Here that is the volume of adsorption of the gases, here that is on this axis the pressure is there. That is, at a lower temperature more and more adsorption will be takes place, okay. तो हम अभी देखेंगे, the next one is the pressure of the गैस का प्रेशर कैसे रहेगा, उसके ऊपर क्या कैसे है। तो एडसॉर्प्शन increases as the pressure increases. Adsorption increases at the pressure increases. That is, we can say that the adsorption is directly proportional to the pressure, okay. That is, at any temperature adsorption increases as the pressure increases. तो यहाँ पे जितना भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एडसॉर्प्शन मोर हो जाएगा। देख तो अब यहाँ पे more adsorption at the more pressure, okay, more adsorption will take place at more pressure. Thus
these are the different factors which affect the adsorption of the gases. The next point we are going to see is the application of adsorption. Application of adsorption. So there are different applications of adsorption. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे कैटालिसिस जो रहते हैं रिएक्शन जहाँ पे हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे तो सॉलिड जो कैटालिस्ट है डिफरेंट सॉलिड कैटालिस्ट दिस आर यूज इन द इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द डिफरेंट थिंग्स that is suppose for example Fe or the iron is used इन द अमोनिया फॉर्मेशन में Fe कैटालिस्ट यूज करते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन इज द गैस मास्क. तो कौन सा भी माइंस रहा, कोल सपोज कोल माइंस है, ओके कोल माइंस है, वहाँ पे बहुत सारे मजदूर काम करते हैं. जब भी वो काम तो कोल माइंस में डिफरेंट गैसेस निकलते रहते हैं. कोल तो सिर्फ कोल नहीं रहता, उसके साथ अब जब उनको निकालते हैं हम तो उसके साथ बहुत सारे गैसेस जो है वो इवॉल्व हो जाते हैं वहाँ पे. तो वहाँ पे फिर क्या करते जो वर्कर्स रहते हैं काम करने वाले दिस पीपल यूज़ द मास्क. तो जो पॉइजनस गैसेस रहते हैं वो डेंजरस रहते हैं ब्रीदिंग में. तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं लोग चारकोल और गैस मास्क यूज़ करते हैं वहाँ पे. द गैस मास्क यूज़ करते हैं. तो जो मास्क रहते हैं उनके यहाँ पे तो वो मास्क पे एक्टिवेटेड चारकोल रहता है. ओके, वो मास्क पे एक्टिवेटेड चारकोल रहता है और वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, सब जो गैसेस रहते हैं कोल माइंस से निकलने वाले वो पॉइजनस गैसेस उसके एक एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं. वो और फिर वो जो वर्कर्स रहते हैं उनके लंग्स में नहीं जाते, उनको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं आता और देयरफॉर देयर टू it avoid the inhalation of the poisonous gases. Okay, now the next is the control of humidity. So there are some different reactions or there are many different things where the there should be control of humidity. तो यहाँ पे सिलिका और the alumina gels जो है these are the good adsorbent of moisture. तो वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर लेते हैं. ओके, तो ह्यूमिडिटी जो कंट्रोल तो नेक्स्ट क्या है हमारा अभी है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम. तो बहुत सारे रिएक्शन में हमें हाई वैक्यूम की ज़रूरत रहती है या फिर सपोज लोअर टेम्परेचर एट अ गिवन प्रेशर. कौन से भी लोअर एट अ गिवन प्रेशर लोअर टेम्परेचर रहा तो देयर विल बी अ हाई एडसॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस एट लोअर हमने पहले देखा है लोअर टेम्परेचर पे एडसॉर्प्शन हाई रहता है एट एनी गिवन प्रेशर. ओके, तो इसमें क्या होता है तो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द चारकोल पाउडर. तो बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल हाई वैक्यूम कैन बी अटेंडेड और द क्रिएटेड. तो कौन से भी कुछ रिएक्शंस रहते हैं वहाँ पे हाई वैक्यूम की ज़रूरत रहती है. या फिर जो स्पेस में जो लोग जाते हैं यानी कि स्पेस शटल यानी कि जो अलग अलग ए रहते हैं स्पेस शटल्स वगैरह उसमें वहाँ पे उनको हाई वैक्यूम चाहिए रहता है. स्पेस में हाई वैक्यूम उनको चाहिए रहता है. तो फिर वहाँ पे क्या करते हैं तो उनको पहले वो प्रैक्टिस कर लेते हैं. जो भी एस्ट्रोनॉट्स है वो प्रैक्टिस करते हैं. वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं हाई वैक्यूम की. तो अलग अलग जो प्लेट्स रहते हैं कार्बन प्लेट्स जो रहते हैं प्लेट्स ऑफ कार्बन तो वहाँ पे सब one there will be one room and there are different plates of carbons are there. They keep the different plates of carbon and these carbon plates absorb the gas present and in that room and thus the high vacuum is created and therefore these the astronauts just practices regarding the high vacuum. Okay, the next application is the adsorption indicator.
तो एडसॉर्प्शन इंडिकेटर में क्या है, इट डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन रहता है वहाँ पे ये एडसॉर्प्शन इंडिकेटर यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज़ द सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। तो जो इनर्ट गैसेस रहते हैं, डिफरेंट इनर्ट गैसेस, तो वो डिफरेंट सिलेक्टिव एडसॉर्प्शन प्रिंसिपल वहाँ पे यूज़ होता है। डिफरेंट गैसेस गेट एडसॉर्ब एट द डिफरेंट एक्सटेंट। सब गैस एक साथ नहीं एडसॉर्ब हो जाते हो, अलग गैस का अलग स्पीड रहता है एडसॉर्प्शन का, डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर। तो जो वहाँ पे हम इसको ओ गैसेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं by the adsorption method or by the adsorption technique or the principle. The next one is the phosphorylation process. This process due to this the ore get adsorb on the oil surface. तो जो हम जो मेटल सेपरेट करते हैं या फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं, तो वहाँ पे ये टेक्निक यूज़ हो जाती है। तो नेक्स्ट वन इज़ द क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। ओके, तो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस क्या है? तो अगेन यहाँ पे जो सिलेक्टिव एडसॉर्प्शन टेक्निक है, यानी कि सब गैस है या फिर कोई सब्सटेंस से एक साथ एडजॉर्ब नहीं होता है, उसका एडसॉर्प्शन का स्पीड अलग अलग होता है। तो फिर यहाँ पे जो बाय यूजिंग पाउडर्ड एडसॉर्बेंट सच एज सिलिका और द एल्यूमिना जेल, तो वहाँ पे डिफरेंट सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन रहता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री में ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, इसके एप्लीकेशंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दस दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द एडसॉर्प्शन। ओके, बाय बाय, थैंक यू।